So welcome dear students in another part of this unit. Today will be the last topic of this unit, that is the viscosity. So if you have not watched the other parts, you can watch. There is a complete playlist you can check on this channel. So let's start. Viscosity. आपने सुना होगा that there are different types of liquids. So viscosity is one of the property of liquid. जैसे इससे पहले हमने देखा evaporation, vapor pressure, surface tension. These are the various properties. So among them there is another property, that is the viscosity. तो आपने सुना होगा that we are having two types of liquids. One is called non-viscous liquid. Non-viscous liquid. Non-viscous जो है ये हम तब बताते हैं जब लिक्विड जो होगा easily flow होगा. For example, we are having water as a liquid, it easily flows. We are having alcohol as a liquid, we are having benzene as a liquid, we are having kerosene oil as a liquid. So these liquids easily flow, so they are non-viscous liquids. But you have also observed in your daily life that there are some liquids which cannot easily flow. जो easily flow नहीं होते हैं, such liquids को हम कहते हैं viscous liquids. So viscous liquid के example में आप याद रख सकते हैं. We are having honey. आपने देखा होगा that honey जो है original honey, it cannot easily flow. Similarly आपके पास है glycerol. Glycerol जिसका IUPAC नाम जो है that is propane 1,2,3 triol, या जिसको आप इंग्लिश में ग्लाइसरीन कहते हैं और कश्मीरी में गिल्सरीन. तो ये जो लिक्विड है इट कैन नॉट ईजिली फ्लो. या हमारे पास है कैस्टर ऑयल है हमारे पास, है ना. तो ऐसे लिक्विड्स ईजिली फ्लो नहीं होते हैं. तो ये जो लिक्विड्स है दे आर विस्कस लिक्विड्स. सो दिस प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय लिक्विड दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. तो एक्चुअली विस्कोसिटी जो है इसको फिर हम डिफाइन कर सकते हैं. विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज इंटरनल resistance. It is defined as internal resistance to the flow of liquid, yeah, we can say internal resistance to the flow possessed by a liquid. Internal resistance to the flow possessed by a liquid, that is called the viscosity. क्या बताया मैंने? So it is what? It is the internal resistance. That means liquid के अंदर ये जो liquids हैं इनके अंदर कुछ internal resistance होता है, hindrance होता है जो इनको flow होने नहीं देता है. So possessed by a liquid, that's called the viscosity. अब ये जो internal resistance है ये किसकी वजह से होती है? तो आगे आप लिख सकते हैं it is due to internal friction. ये किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है. फ्रिक्शन आप फिजिक्स में कंप्लीट डिटेल में आपको ये पढ़ना है. सो इट इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स इन ए फ्लूइड. सो ये किसकी वजह से होता है? इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से होता है जो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान होता है एक फ्लूइड के अंदर. So that is the cause of the viscosity. तो समझ में ये आया that it is the internal resistance to the flow of liquid, है ना. या simply internal resistance to the flow possessed by a liquid, and it is due to the internal friction between different layers in a fluid. तो ये internal friction आपको अभी डिटेल में समझ में आ जाएगा. Okay, let's see. ये जो internal friction है ये क्यों होता है और इसका cause क्या है? एक्चुअली जब भी हमारे पास कोई लिक्विड होगा, लेट्स से वी आर हैविंग वाटर एज ए लिक्विड और वाटर फ्लो हो रहा है ना स्ट्रीम्स के अंदर. आपने देखा होगा लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ सॉइल, है ना, सरफेस ऑफ सॉइल. अब इसके अबो लेट्स से दिस इज द लिक्विड लेयर विच फ्लोज ऑन दिस. तो बहुत सारे लिक्विड के लेयर्स जो है वो यहाँ पे फ्लो होते हैं. But you will note down that जो लिक्विड की लेयर which is touching this soil surface, है ना, ये जो ये जो सरफेस है, सरफेस ऑफ सॉइल,
इसके साथ जो लिक्विड की लेयर है, ये आपको जब इसको आप देखेंगे गौर से, इट यू विल फाइंड दैट इट इज स्टेशनरी। दैट मीन्स आपको लगेगा जैसे ये फ्लो हो ही नहीं रही, दिस लिक्विड लेयर डज नॉट फ्लो, ऐसा आपको लगेगा। और ये रियलिटी में भी है दैट इसकी वेलोसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। एंड व्हेन यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस, दैट मीन्स जो ही आप टॉप सरफेस पे आ जाएंगे, यू विल फाइंड दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज। सो दैट मीन्स ये जो लेयर है विच इज एट द टॉप, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है टॉप लेयर पे। सो दैट मीन्स द लेयर विच इज़ इन कंटैक्ट विद द सॉइल या विच इज़ इन कंटैक्ट विद द अर्थ सरफेस, इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ नियरली ज़ीरो। सो दिस इज़ स्टेशनरी। वी कैन से दैट इट लुक्स लाइक टू बी स्टेशनरी, और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है, दिस इज़ नोन एज लैमिनर फ्लो, या इसको हम कहते हैं लैमिनेटेड फ्लो। सो व्हाट इज लैमिनर फ्लो? तो आप लिखेंगे इट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच डिफरेंट लेयर्स, किसके डिफरेंट लेयर्स? लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स। सो फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच डिफरेंट लेयर्स show regular gradation in velocity when moving from one layer to the next. So this is the laminated flow. फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी है ना, जैसे वाटर लिक्विड हम ले रहे हैं, तो वाटर फ्लोज है ना, किसी भी सरफेस पे आप देखेंगे दैट वाटर फ्लोज, या जैसे स्ट्रीम्स के अंदर है ना, तो ये जो वाटर की लेयर है विच इज एट द बॉटम, सबसे नीचे वाली लेयर विच इज टचिंग द अर्थ सरफेस ऑफ सॉइल, तो वो कैसी होती है? स्टेशनरी। इसकी वेलोसिटी नियरली ज़ीरो होती है, बहुत ही कम स्पीड से ये फ्लो होता है। बट व्हेन यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस लेयर, यू विल फाइंड दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस। और ये आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टॉप सरफेस पे लिक्विड की लेयर होती है, वो आपको दिखेगा दैट इट मूव्स विद अ वेरी फास्ट स्पीड, बट द लेयर विच इज़ एट द बॉटम इट इज़ स्टेशनरी, या इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। तो ये जो फ्लो है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डिफरेंट लेयर्स शो रेगुलर ग्रेडिएशन इन वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, लेट्स से लेयर ऑफ लिक्विड विच इज़ एट द बॉटम, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसके अबो जो होगी उसकी थोड़ी बहुत स्पीड होगी ज़्यादा, और उसके अबो जो होगी स्पीड और ज़्यादा होगी, और सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो किसकी होती है? द लेयर ऑफ लिक्विड विच इज़ एट द टॉप सरफेस, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लैमिनर फ्लो। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक 3 लेयर्स ऑफ लिक्विड हम ले रहे हैं। अगर हम लेंगे 3 लेयर्स ऑफ लिक्विड, एक लेयर वो हम लेंगे विच इज बॉटम, सेकेंड विल बी इन बिटवीन, एंड द थर्ड लेट्स से दैट इज द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड। तब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं? लेट्स दिस इज द वन ऑफ द लिक्विड लेयर, सो ये एक लेयर है लिक्विड की। लेट्स से इसी के साथ नेक्स्ट लेयर, एंड लेट्स टेक द थर्ड वन लेयर। ये लिक्विड के लेयर्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, और इसी में हम कंपेयर करेंगे इनकी स्पीड। सो लेट्स से दिस इज द ए लेयर, बी लेयर एंड द सी लेयर। Let's say the area of cross section of this is A, और ये जो layers हैं, 2 layers के दरमियान let's say distance is dz, जिस distance से आपस में एक दूसरे से separated है, let's say the distance between the 2 layers is dz and the area is A। अब मुझे बताओ ये जो layer है, this one layer है ना, जो बॉटम पे है, इसकी स्पीड सबसे कम होगी, और इससे ज़्यादा सेकंड लेयर के, और ये जो टॉप पे लेयर है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेट्स से ये जो बीच वाली लेयर है इसकी
वेलोसिटी जो है इसकी वेलोसिटी हम v से दिखा रहे हैं। तब मुझे बताओ जो इससे बिलो लेयर है इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी इससे। सो लेट्स से इट इज v माइनस dv। नाउ व्हाट इज dv? dv रिप्रेजेंट इज द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी लेट्स से v है, v लेट्स टेक इट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तब इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी लेस देन 5, है ना। अगर इसकी वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो इसकी वेलोसिटी 5 से कम होगी, लेट्स से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वही हमने लिखा v माइनस dv। dv मीन्स स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इससे कम, है ना। चलो अब नेक्स्ट बताओ, जो टॉप पे लेयर है दिस वन, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, बीच वाले लेयर से ज़्यादा होगी। तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v प्लस dv, v प्लस dv। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप लेयर, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो समझ में ये आया दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम towards the top surface velocity of liquid layer it increases। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, now a force is required to maintain the flow of liquid। यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, a force is required to maintain flow of fluid or flow of liquid, है ना, liquid is a fluid। सो दैट फोर्स हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। वो देखा गया कि ये जो फोर्स, या इसको हम बताएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, दो लेयर्स के दरमियान एक्चुअली क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो अभी मैंने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो पोजेस्ड बाय ए लिक्विड इट इज़ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बिटवीन टू लेयर्स है वो किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अगर दो लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स ये लेयर्स इजीली फ्लो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इन कंटैक्ट और द सरफेस इन कंटैक्ट, है ना। लिक्विड लेयर जो है इसका एरिया कितना होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। या इसको हम बताते हैं इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। जो फोर्स हमें लगेगा किसके लिए, है ना, लिक्विड फ्लो करवाने के लिए, या सिंपली इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। सो इट इज़ डायरेक्टली फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। And it has also been found that this force of friction it is also directly proportional to the velocity gradient। और वो हम कैसे दिखाते हैं, dv upon dx, dv upon dx। dv मैंने अभी बताया स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी, एंड dx या इसको हम बताएंगे dz, है ना, dv upon dz। dz is the distance between the two layers। या अगर आपके पास स्मॉल डिस्टेंस है dz, at a distance dz, let's say there is change in velocity dv, so dv upon dz it is called velocity gradient, it is known as velocity gradient। तो ये velocity gradient कहलाता है, dv upon dv it is known as velocity gradient। तो इस velocity gradient पे भी ये force of friction डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन सेकंड इसको नाम देते हैं। So from equation first and second हम क्या लिख सकते हैं, that f is directly proportional to a into dv upon dx लिख सकते हैं, right, we can write। So a is the area and dv upon dx जो है that is the velocity gradient। वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर हम लेट्स से ये जो dz डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स बिटवीन द टू लेयर्स। अब जब हम जाएंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। अगर अबो जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर बिलो जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीजेज, वो हमने बता दिया यहाँ पे। तो लेट्स से द चेंज इन वेलोसिटी इज dv, सो dv अपॉन dx दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस पे भी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा और एरिया पे भी डिपेंड करेगा। एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। सो दैट इज ऑल्सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो ऑफ लिक्विड। Now this f is equal to some proportionality constant, है ना, ये proportionality खत्म करेंगे तो that's called a neta into a into dv upon dx। और यहाँ पे आप याद रखेंगे ये जो neta है this is a proportionality constant known as coefficient of viscosity। It is known as coefficient of viscosity।
और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी से हम मेजर करते हैं कौन सा लिक्विड कितना ज़्यादा विस्कस होगा। डिफरेंट लिक्विड्स है डिफरेंट विस्कोसिटी, है ना। जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एन वैल्यू स्मॉल, नीटा वैल्यू स्मॉल होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ नीटा लेस विल बी द विस्कोसिटी। जितना इसका वैल्यू कम होगा, किसका वैल्यू कम होगा, नीटा का, तो विस्कोसिटी भी उतनी क्या होगी, विस्कोसिटी भी उतनी कम होगी। एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ नीटा मोर विल बी द विस्कोसिटी, मोर विस्कस विल बी द लिक्विड, है ना। अब ये जो है यहाँ पे इफ लेट्स से इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज 1 यूनिट, है ना। अगर एरिया कितना है 1 यूनिट, लेट्स से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज dv अपॉन dx, ये भी है 1, इसका यूनिट भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है। लेट्स से इट इज यूनिटी का मतलब हुआ दैट द चेंज इन वेलोसिटी लेट्स से इट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे समझ में आएगा। dv लेट्स से इट्स 1 सेंटीमीटर पर सेकंड और dx जो है लेट्स से इट इज आल्सो 1 यूनिट, लेट्स से इट्स 1 सेंटीमीटर। So dv upon dx that is 1 upon 1 that is 1. So velocity gradient is 1. Area of cross section or area in contact that is also 1. So that means at that time therefore हम क्या लिख सकते हैं, from this equation third आप लिख सकते हैं that F is equal to neta. F is equal to neta. So अब आप define कर सकते हैं what is coefficient of viscosity. So what is coefficient of viscosity? It is the force of friction. It is the force of friction when area of cross section is 1 या unity and the velocity gradient it is also unity. तो ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका वैल्यू कम होगा तो विस्कोसिटी भी कम, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। बिकॉज इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा, और जितना इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस हिंड्रेंस ज़्यादा होगा जो दो लिक्विड लेयर्स को फ्लो होने नहीं देगा, तो दैट मीन्स विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। सो दिस इज द नीटा, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर थर्ड दैट इफ ए इज इक्वल 1 dv अपॉन dx इज आल्सो यूनिटी देन f इज इक्वल टू नीटा। नाउ इसका यूनिट इंपॉर्टेंट रहेगा नीटा का, है ना। तो कहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। सो नीटा किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू f इंटू dx अपॉन a इंटू dv, है ना। इसको आप अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, नीटा जो होगा इट इज़ इक्वल टू एफ, a यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, dv मल्टीप्लाई था तो डिवाइड, dx डिवाइड में है तो ये इंटू। तो अब यहाँ से आप इजीली यूनिट निकाल सकते हैं। ज़रा बता दो मुझे, फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, dx इट इज़ द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस का यूनिट लेट्स से मीटर है, ऐसा ही यूनिट हम पहले निकाल रहे हैं। सो अपॉन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू dv इज़ द वेलोसिटी, सो इट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो मीटर इंटू मीटर तो मीटर क्यूब, सो न्यूटन मीटर, ये मीटर क्यूब है ऊपर आ जाएगा तो पर मीटर क्यूब, पर सेकंड है तो ये सेकंड बन जाएगा। अब बताओ, सो व्हाट विल बी द यूनिट हियर, यूनिट विल कम आउट टू बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इसको सिंपली आप ऐसे भी अब लिख सकते हैं, इट इज़ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसका ऐसा यूनिट रहेगा ये, सो दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ना अब अगर हम CGS यूनिट की बात करेंगे, सो इन CGS सिस्टम, सेंटीग्रेड सिस्टम, व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट जो होगा न्यूटन के बदले क्या हम लिखेंगे, इट विल बी डाइन सेकेंड और यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस यूनिट को हम कहते हैं इट इज नोन एज पॉइज, वन पॉइज ऑन द बेस ऑफ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। सो CGS यूनिट ऑफ विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है दैट इज द पॉइज। अब मुझे बताओ, ये जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है,
इस यूनिट को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो न्यूटन जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट हम क्या बता रहे थे अभी? न्यूटन। सो एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो न्यूटन के बदले क्या लिखेंगे? न्यूटन के बदले केजी, उसके बाद हाँ न्यूटन के बदले केजी, आगे क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट इसके साथ क्या है? सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये केजी मीटर, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज पर मीटर सेकंड per second. So kg per meter per second, this is also the SI unit of coefficient of viscosity. तो CGSE में कैसे हम बता सकते हैं? फिर पॉइज जो है इट इज़ द CGS यूनिट, तो CGSE में कैसे बता सकते हैं? kg है ना, दैट इज ग्राम पर मीटर, दैट इज पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द 1 पॉइज। सो 1 पॉइज इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर per second. So this is the unit of coefficient of viscosity in CGS system, that is centigrade system. तो ये आपको यहाँ पे आना चाहिए निकालना। Now let's see, एक पॉइज जो होता है 1 पॉइज, P से हम इसको दिखाते हैं, पॉइज कैपिटल P से। So it is equal to 0.1 kg per meter per second. तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। सो 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 kg पर मीटर पर सेकेंड। 0.1 kg पर मीटर पर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं 1/10 ऑफ द SI यूनिट। ऐसे भी आप लिख सकते हैं दैट 1 पॉइज कितना होता है? 1/10 ऑफ SI यूनिट, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है? ये SI यूनिट है, और पॉइज क्या है? इट इज़ द CGS यूनिट। सो इट इज़ 1/10 ऑफ SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ लेट्स सी, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जितना नीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ द मेजर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। तो ये जो विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, अगर इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स 1 नीटा, तो दैट इज इक्वल टू 5। और ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज नोन एज फ्लूइडिटी, इट इज नोन एज फ्लूइडिटी। सो व्हाट इज फ्लूइडिटी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, फ्लूइडिटी कम होगी, और सिमिलरली नीटा का वैल्यू कम होगा तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, और फ्लूइडिटी यहाँ पे किससे हम दिखाते हैं? 5 से दिखाते हैं। सो दिस नीटा एंड दिस इज द 5। सो रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी। तो ये है व्हाट इज विस्कोसिटी। अब ये जो विस्कोसिटी है, now let's see the factors which affect the viscosity of a liquid. तो पहला जो फैक्टर रहेगा, let's see, that is the temperature. ज़रा मुझे आप बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, what will happen to the viscosity of a liquid? विस्कोसिटी कम होगी या ज़्यादा? So tell me, factors affecting viscosity of a liquid. तो पहला फैक्टर क्या बता रहा हूँ? इट इज़ द टेम्परेचर। तो सिंपली आप याद रखेंगे, टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल हैपन? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, और उससे क्या होगा कि लिक्विड विल नाउ स्टार्ट टू फ्लो इजीली। तो दैट मीन्स विस्कोसिटी जो है दैट डिक्रीजेज, विस्कोसिटी डिक्रीजेज with increase in temperature. So the next factor is the nature of liquid. तो इसमें आप सिंपली याद रखेंगे कि जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा,
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी जो है दैट्स आल्सो मोर। तो विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें पर्टिकुलरली आप याद रखेंगे, जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी लिक्विड के अंदर, और सिमिलरली एंड वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, दोनों है एक साथ, या सिमिलरली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, वंडर वॉल भी है, तो दैट मीन्स वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, लेट्स से वी आर हैविंग इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजीन। हमने अभी भी देखा था दैट बेंजीन इज अ नॉन विस्कस लिक्विड, इट इजीली फ्लोज, बट इथाइल अल्कोहल हाँ इसकी विस्कोसिटी इससे ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देयर इज आल्सो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, पर बेंजीन इज अ नॉन पोलर लिक्विड, तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिंपली वन डर वाल फोर्स ही है, तो दैट्स वाई इसकी विस्कोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। अब थर्ड जो है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सिंपली आप याद रखेंगे, जितना मॉलिक्यूलर मास किसी लिक्विड का ज़्यादा होगा तो उसमें विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। सो मॉलिक्यूलर मास इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं ब्रांचिंग। अगर किसी लिक्विड के अंदर ब्रांचिंग है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अल्कोहल, दिस वन अल्कोहल CH3CHOH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, दैट मीन्स ये जो ब्रांच है यहाँ पे, ये जो चेन है यहाँ पे कार्बन चेन, इट इज़ ब्रांच्ड वन, यहाँ पे ब्रांच निकला हुआ है, ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ से ब्रांच है, तो ड्यू टू दिस ब्रांचिंग विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेज। विस्कोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है ब्रांचिंग की वजह से, एज कंपेयर टू दैट अल्कोहल या एज कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल जिसमें स्ट्रेट चेन होगी तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। सो ब्रांचिंग की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। तो अब आप सिंपली याद रखेंगे कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो ईजिली फ़्लो नहीं हो सकता है, और जिसमें विस्कोसिटी कम होगी वो ईजिली फ़्लो हो सकता है और उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज विस्कोसिटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी। जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसकी फ्लूइडिटी, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। तो ये अभी हमने देखा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, जैसे हमारे पास गिलास जो है, गिलास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। एक्चुअली गिलास को कहा जाता है इट इज़ ए सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर हम एक लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे सॉलिड उसका, जैसे वाटर व्हेन इट इज़ वेरी कूल इट बिकम्स आइस। तो गिलास को भी क्या माना जाता है? इट इज़ ए सुपर कूल्ड लिक्विड। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है जिनको 10-20,000 हो गए, उनमें जो विंडो पैन्स है, विंडो के अंदर जो शीशा लगा होता है गिलास का, तो आप देख सकते हैं इन एन ओल्ड बिल्डिंग the window pan or the glass it is thick at the bottom and thin at the top। तो थिंक ये बॉटम पे क्यों होता है? क्योंकि ये स्लोली फ्लो होता है, पर इसकी फ्लूइडिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम विस्कोसिटी अगर आप बता सकते हैं तो वो गिलास के पास है। सो इसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये हमने सीखा विस्कोसिटी क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स which affect the viscosity and coefficient of viscosity. So hope that you have understood। तो इसके साथ ये जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ और इसके साथ ये यूनिट भी कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।